Hello students, this is the second video for the chapter the resources and development from the geography section. In this video we are going to study types of resources. So first of all we have to start to read the resources on the basis of origin, and here the first heading under it biotic resources. As we have discussed a lot yesterday about resources and development, how these are combined to each other, and now we are going to read in detail about the resources and its types. Biotic resources. These are obtained from biosphere and have life such as human being, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. You have to understand here that the biotic resources are obtained from biosphere where all the living things live, and it is associated with flora, fauna, fisheries, livestock, etc. These are the things in our biosphere which provide us biotic resources, and you can also call it uh, uh, that these are associated with it. Biotic resources, it's very simple students. You can understand very clearly all those things which are composed of non-living thing are called abiotic resource. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी हमारे इस बायोस्फीयर में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इस इन्वायरमेंट में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी क्या कही जाती हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल के लिए रॉक्स, metals, etc. Now on the basis of exhaustibility, renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest, wildlife, etc. The renewable resources may further be divided into continuous or flow. Now you have to understand here renewable resources. The resources which can be renewed or reproduced means एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जिस रिसोर्स को चेंज करने का जो प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल, चाहे केमिकली, चाहे मैकेनिकली प्रोसेस से, और इससे रिप्लेनिशबल करके हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ये प्रोसेस कही जाती है रिन्यूएबल. इससे जो भी रिसोर्स हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस. लाइक दैट सोलर, वी गेट सन, एंड टू कन्वर्ट द एनर्जी, सन एनर्जी, solar energy, we convert it in solar energy, and also we get lot of advantage in electricity and also in many ways. Wind energy, water, forest, wildlife, like that, all these resources are converted from one to another form, and these resources are known as renewable resources. Non-renewable resource, this is also very important. What is non-renewable resource? These occur over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and
Some, like fossil fuels, cannot be recycled and get exhausted with the earth. जो भी हमारे अर्थ के अंदर मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल हैं। और ये जो रिसोर्सेस होते हैं, ये मिलियंस ईयर्स के बाद इनका फॉर्मेशन होता है, मिलियन ईयर्स के बाद ये रिसाइकलिंग इनका होता है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ट्रीज वगैरह जो होते हैं, ये सब मिलियन ईयर्स तक इस अर्थ में दबे रहते हैं और फिर इनका जो है रिसाइकलिंग होकर के एक रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल resources, these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. And in villages, there are people with land powers ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, house, and other property, plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. are some of the examples of resources ownership by individual. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में हमें इंडिविजुअल रिसोर्स को स्टूडेंट्स पढ़ना, एंड दीज आर द रिसोर्सेज कॉल्ड प्राइवेट और इंडिविजुअल रिसोर्सेज. Government also allotted lands to the people who pay revenue. In many villages there are many people who are landless, and urban people have also their own plots, house, other property, and sometimes they start plantation, pasture land, ponds, मीन जो भी कॉमन यूज होने वाली जो ये जो चीज़ें होती हैं, ये जैसे पास्चर लैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वाटर इन वेल्स हो गया, ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक किसी न किसी की ही एक लैंड होती है, उनको गवर्नमेंट उनको अलॉट की रहती है और उसका यूज़ सब लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग उसका यूज़ करते हैं. ये सारे रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में resources which are accessible to all the members of community, village common, grazing ground, burial ground, village ponds, public park, picnic spots. तो अगर बात हो रही है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की, तो जो भी रिसोर्स जहाँ पे हमारे पशु ग्रेजिंग करने जाते हैं, जो बरियल ग्राउंड्स होते हैं, जो विलेज पॉन्ड होते हैं, जो पब्लिक पार्क होती है, पिकनिक स्पॉट्स होती हैं, ये सब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस होते हैं जिनका यूज़ पब्लिकली कम्युनिटी के रूप में होता है, एंड सो दे आर कॉल्ड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस. Now, playground in urban areas are do facto accessible to all the people living there. प्लेग्राउंड भी उसका एक उदाहरण होगा, क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी लेवल चीज़ है, कॉमन स्तर पर यूज होता है. नेशनल रिसोर्स क्या है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर even private property for public use. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individual. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundary and oceanic area up to 12 nautical miles, 19.2 kilometers from the coast termed as territorial water, and resources therein belong to the nation. Students, with these all the things that is technically
used for the nation, belong to the nation, and country has also legal power for maintain to those things as a private property of government, लाइक दैट रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, बिंग कंस्ट्रक्शन। जितनी भी चीज़ें जो पब्लिक यूज में होने वाली चीज़ है लेकिन एक सरकार की प्रॉपर्टी होती है, ये सब नेशनल रिसोर्सेस होते हैं और इसका अथॉरिटी गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के अंडर में ही इसका डेवलपमेंट किया जाता है और कैनल से लेकर के रोड और रेलवे तक ये सारी व्यवस्थाओं को गवर्नमेंट ही रन कराती है, गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है? देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड टू इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो ओशियन और सी की जो बात हो रही है, जिसकी क्षेत्रफल, जिसकी एरिया अन्य देशों तक लगी रहती है और दूसरे देश के सीमाओं से जुड़ी रहती, ऐसे रिसोर्स को हम इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। नाउ on the basis of status of development, on the basis of the status of development, potential resources which are found in a region, यानी एक रीजन में, एक क्षेत्र में, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उसका उपयोग ना हो पा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात है, इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। राजस्थान और गुजरात की बात करें, जो कोस्टल हमारी एरिया भी, गुजरात जो हमारा कोस्टल एरिया भी है और राजस्थान जहाँ पर काफ़ी हवा का इफेक्ट है, यहाँ पे सोलर एनर्जी और विंड का पोटेंशियल बहुत अधिक है, इनॉर्मस पोटेंशियल है। आफ्टर दैट उसको बड़े पैमाने पर डेवलप नहीं करके उसका यूज नहीं हो पा रहा है। डेवलप्ड रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर quality and quantity have been determined for utilization. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. बहुत सी जो रिसोर्सेस हैं जो सर्वे की गई हैं, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में यूटिलाइजेशन के लिए उनको डिटरमाइन किया गया है। तो उन रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और उनके लेवल ऑफ फिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। स्टॉक के मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड अमंग स्टॉक जो भी है हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी मटेरियल पड़े हुए हैं जो हमारे ह्यूमन बींग को सेटिस्फाइड करते हैं, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, ये सब जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रही हैं, ये हमारे बीच के इस पोर्शन को हम स्टॉक कहते हैं। जैसे कि वाटर जो हो गया हमारे लिए एक स्टॉक है और इस स्टॉक का यूज जो है हम अपने लिए कंपाउंड के रूप में, इनफ्लेमेबल गैस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एजुकेस को यूज़ हम कर रहे हैं, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी बट यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम फॉर दिस पर्पज। Hence, it can be considered as stock। रिजर्व्स, क्या रिजर्व कहा जाता है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been studied। रिजर्व्स जो होते हैं कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जिसको फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा जाता है। फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखा जाता है कि कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज कर सकें। जैसे रिवर का वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इसको स्टोर किया गया, रिजर्व किया गया यूज करने के लिए।
इस तरह से वाटर जो डैम है, फॉरेस्ट जो है, ये सब हमारे रिजर्व रिसोर्सेस हैं जिसका हम यूज फ्यूचर में भी कर सकते हैं. तो यू कैन से दैट दिस रिसोर्सेस like that river, like that forest, or reserve resources, and we can use all these resources in our future, so this is the part of resources, and on the basis of development, now we have to read the another topic, development of resources.